Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are all well. So today we are going to study about digestion of foods. How food and food products are digested in our body and what is the process, what are the implications and everything about it. Okay. Before that, please do like, comment, share and subscribe to my channel. Okay, and if you want any particular topic of your choice to be explained by me, please do let me know below in the comments section. Okay, and in this particular topic, if you get any doubt, any confusion or anything you want to ask, please do drop your question in the comment section below. I'll definitely answer you guys. Okay, so what is digestion? We need to understand what is digestion and then what are the procedures and the components included in this process. So digestion क्या होता है? Whenever we eat food, in the layman terms, I am explaining that whenever we eat food, it needs to be digested by our body components, body parts, right? So we eat food through the mouth, and which is excreted through the anus, right? So like here I am talking about human beings. There are lower set of organisms and complex set of organisms, so we definitely come in the complex ones, and today we are going to specifically understand about human beings. But every species has a different digestive mechanism, depending on how complex this morphologically and anatomically structure is. How many enzymes do they need, or what is their food requirement and everything. So that are some of the factors which impacts the digestive system. So it is different in every species. Okay, so digestive system, as I said, digestion is composed of mechanical and chemical breakdown of foods into absorbable forms. So when we eat food, we eat the food in an intact form, right? We eat chapatis or rice or whatever, but we are eating that food component in the integrated, like in the compact form, right? Which has protein, nutrients, carbohydrates, fats, everything is associated with that food part which you are taking in. So उसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना, एक ऐसा एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उसका कन्वर्जन होना कि वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कैन बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी पार्ट्स उस तरीके से. बिकॉज सी हमारे बॉडी पार्ट्स में एनर्जी जो आती है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म्स से ही आती है. वी कैन नॉट derive the energy directly from the chapati, right? The body has to go certain sequential process to get it into absorbable form, and then then we get the energy. That's how the further processes for the energy formation occurs. So digestion is mechanical and chemical breakdown of foods into absorbable forms. Now digestion is comprised of an entire system that is known as digestive system, which has its components. Esophagus, like starts from mouth, so mouth, then comes esophagus, a small intestine, large intestine in the stomach. So all of these factors together constitutes the digestive system. So it involves mouth, stomach, small intestine, accessory glands such as salivary glands, which is present in saliva, pancreas, liver, all of that. Enzymes play a very central role in digestive system. Enzymes बहुत major role play करती है. Carbohydrates का digestion हो या lipids का digestion हो या protein का digestion हो या nucleotides का digestion, किसी का भी digestion हो, enzymes do play a very important role in digestion. Products, monosaccharides, amino acids, fatty acids, monoglycerides, nucleotides. These are the products which can be absorbed by our body. So these are the products which is further broken down into the absorbable forms to get the energy and the nutrients from it. Okay, so digestion starts from mouth. As I told you, digestion is the process. It starts from mouth because we consume the food through our mouth, right? So see, digestion
when I say digestion starts from mouth, it definitely comprises of mechanical and chemical methods both. So what happens is, first we chew the food, right? We chew the food, and the chewing of the food is known as mastication. So first the mechanical digestion which is done by our mouth is mastication, जहाँ पर फूड को हम chew करते हैं, जिससे वो जो large food particles हैं वो छोटे छोटे particles में broken down हो सके. तो ये कैसे broke down होते हैं? How do we get this done in the mouth? So जो salivary glands होती हैं, saliva में present होती हैं, they lubricate the food components of food particle. वो lubrication करने का काम करती है, और food का mastication जो होता है वो properly हो पाता है saliva के वजह से, salivary glands के presence के वजह से. ओके, सो ये मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स फर्दर जाते हैं इनटू बोलस. बोलस से फिर आगे हमारे ईसोफेगस में फूड कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो अब प्रॉपरली छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन गए हैं, वो आगे जाते हैं ईसोफेगस में. एंड ईसोफेगस से फर्दर से ईसोफेगस में कोई भी फूड कंपोनेंट या फूड पार्टिकल तभी जाता है जब वो प्रॉपरली सॉलोड हो. तो swallowing of the food is very important. It is also known as deglutition, जहाँ हम उसे छोटे छोटे particles में divide करते हैं with the help of saliva और salivary glands. Okay, so deglutition के process से ये होता है. Now the process is initiated by the voluntary action of collecting the oral contents on the tongue. सबसे पहले ये process कैसे start होता है? It starts with the voluntary एक्शन. वॉलंटरी एक्शन मतलब अपनी मर्जी का एक्शन, जहाँ पे जो भी ओरल कंटेंट्स हैं वो टंग पे रखते हैं. देन वी ट्राई टू पुश दैट पर्टिकुलर फूड पार्टिकल इनटू द फेरिंग्स. ठीक है, सो एज सून एज इट गोज इनटू द फेरिंग्स, मस्कुलर प्रोसीजर्स जो हैं फेरिंगियल मसल्स से वो स्टार्ट हो जाते हैं. फेरिंगियल मसल्स क्या करती है? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस करने लगती है ताकि फूड जो है वो फर्दर आगे जा सके ईसोफेगस से और नीचे जा सके. जो बोलस में जब फूड रहता है तो इट पासेस डाउन दी फूड थ्रू ईसोफेगस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस की मदद से. इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टेल्सिस. पेरिस्टेल्सिस इज अ प्रोसीजर जहां पर हम माउथ से फूड को आगे पुश करते हैं इनटू दी ईसोफेगस. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस. एंड रिवर्स पेरिस्टेल्सिस प्रोसीजर होता है जब हमारे स्टमक कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता. व्हेन देयर इज एनी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम अकरिंग इन द स्टमक, कुछ भी हो सकती है जिसकी वजह से स्टमक जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है फूड पार्टिकल को. तो व्हाट हैपेंस इज इट सेंड्स दी फूड बैक थ्रू आवर माउथ. वो फूड जो है मुंह से ही वापस निकल जाता है. दैट इज नोन एज वॉमिट, राइट. उसको हम रिवर्स पेरिस्टेल्सिस भी बोलते हैं. व्हाट इज पेरिस्टेल्सिस? जब हम माउथ से स्टमक में या ईसोफेगस में फूड को भेज रहे हैं. व्हेन फूड कम्स आउट थ्रू the opposite direction, like from stomach to the mouth, so the process is then known as reverse peristalsis. Okay, so इस तरीके से फूड जो है वो ईसोफेगस में जाता है. वंस द फूड गोज इनटू ईसोफेगस, अब कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन, लिपिड्स का डाइजेशन, फैट्स का डाइजेशन, ये सब के डाइजेशन होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कैसे होता है? सी कार्बोहाइड्रेट्स जो भी फूड कंपोनेंट, जो भी फूड पार्टिकल किसी ने भी कंज्यूम किया, उसके जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के लाइक टूटने से होगा. वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कैसे टूटेंगे? बाय एडिशन ऑफ वाटर. वाटर के एडिशन के वजह से जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में वो टूट जाते हैं. जैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स में, अब वाटर कहाँ से आ रहा है? थ्रू सलाइवा. अब जो सलाइवा होता है ये क्या करता है? जो वाटर प्रोवाइड करता है, एक न्यूट्रिएंट, एक लुब्रिकेंट जैसा प्रोवाइड करता है फूड कंपोनेंट को, जिसकी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं. एंड सलाइवा के अंदर एक एंजाइम भी प्रेजेंट होती है, दैट इज नॉन एज टायलेज, और उसे हम अल्फा अमाइलेज भी बोलते हैं. तो वो एंजाइम क्या करती है कि जो स्टार्च का जो अमाइलोपेक्टिन है, जब आप कोई भी फूड कंज्यूम करते हो तो उसके अंदर अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. अमाइलोज इज अ लीनियर चेन ऑफ
कार्बोहाइड्रेट, जिसे अल्फा अमाइलेज कर सकती है broke down further broken down, it can be broken down through this part. So amylose, so amylose को broken down करने के लिए alpha amylase is there in the saliva, right? But amylopectin भी होता है which is a branched form of carbohydrate. अभी अमाइलोपेक्टिन को करने के लिए अल्फा अमाइलेज क्या करती है, इट हाइड्रोलाइजेज द अमाइलोपेक्टिन ऑफ द स्टार्च. जब भी कार्बोहाइड्रेट की हम बात करेंगे तो फूड में अमाइलोज के फॉर्म में भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है एंड अमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है. आई एम अगेन रिपीटिंग, अमाइलोज इज अ लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज, whether amylopectin is a branched chain, right? So alpha 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अमाइलोज में तोड़ती है अमाइलेज, एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स अमाइलोपेक्टिन में तोड़ती है अमाइलेज, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, सब प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होते हैं माल्टोज, माल्टोट्रायोज एंड अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन. ये प्रोडक्ट्स जो हैं इनका फॉर्मेशन होता है. अभी जब इनका फॉर्मेशन होता है 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ के, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ऐसे प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, सिंपल कंपाउंड्स में, जो कि डाइजेस्टेबल है. ठीक है, सो यहाँ पे माउथ से कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन इतना ही हो सकता है. दैट इज द एंड ऑफ डाइजेशन थ्रू द माउथ. फर्दर डाइजेशन आगे के पास में होता है. नाउ डाइजेशन ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स का कैसे डाइजेशन होता है बाय माउथ? तो व्हाट हैपेंस इज, सी लिपिड्स में सबसे एबंडेंट लिपिड जो पाया जाता है डाइट में वो होता है ट्राइग्लिसराइड्स. ट्राइग्लिसराइड्स में ग्लिसरोल होता है और फैटी एसिड्स होते हैं. ट्राइग्लिसराइड्स में फैटी एसिड्स अपने अपने डिफर करते हैं, उनकी लेंथ डिफर करती है. सलाइवरी अमाइलेज टायलिन हाइड्रोलाइजेस स्टार्च इनटू माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन्स. लिंगुअल लाइपेज एक्ट ऑन ट्राइग्लिसराइड्स, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, एक्टिवेटेड इन स्टमक. It activates in the stomach the enzyme. Lingual lipase, लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स का माउथ में किस तरीके से डाइजेशन होता है, दैट लाइट टेल यू. प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन माउथ में नहीं होता है, तो इट गोज एज इट इज इंटैक्ट इन द इंटैक्ट फॉर्म. स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर वो आगे जाते हैं जहां पर उनका डाइजेशन कंटिन्यू होता है, दैट आई टोल्ड यू. एंड सी देयर आर सम ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स व्हिच आर आल्सो नोन एज दे आर नॉट, they are very necessary enzymes, but brush border enzyme एक इस तरीके की होती है जो एकदम, जैसे कोई आपने कुछ काम किया उसको फिनिशिंग देने का काम करते हैं ना, जैसे हमने कुछ काम किया फिर हमने उसको फिनिशिंग दी, तो फिनिशिंग एंजाइम्स आर नोन एज ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स. तो अभी जैसे माल्टेज है, ऊपर जो माल्टेज बना वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, सुक्रेज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा. बट ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स वो एक तरीके से फिनिशिंग एंजाइम जैसे होती है, बट वो यहाँ नहीं होता है, वो आगे होता है. सो वी विल नॉट डिस्कस दिस एज ऑफ. So here is how small intestine, how carbohydrates are digested into the small intestine. So see, bile salts emulsify fats. Bile salts क्या करते हैं? They emulsify the fats. जो भी फैटी एसिड्स होते हैं, जो भी वो होते हैं, बाइल सॉल्ट्स उनको फर्दर इमल्सिफिकेशन कर देते हैं उसका. आई कम टू दैट पार्ट, सो डोंट वरी अबाउट दैट. अभी जो पैनक्रियाटिक लाइपेज होती है प्लस कॉलीपेज होती है, तो व्हाट हैपेंस इन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. कार्बोहाइड्रेट्स मैंने आपको बताया कि किस किस एंजाइम से होती है. अभी ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स जो होती है, लैक्टेज हुई, सक्रेज हुई, माल्टेज हुई, अल्फा डेक्स्ट्रिनेज हुई, ये फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स की जो माल्टोस है, माल्टोट्रायोज है, अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रिन्स, इनको फर्दर स्मॉलर कंपाउंड्स में क्लासिफाई करती है, लाइक बाइफर्केट करती है. सो लैक्टेज किस तरीके से करता है? लैक्टेज तोड़ता है लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में. ठीक है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ के इट ब्रेक्स दी लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. सुक्रेज एंजाइम जो होती है वो अल्फा 1,2 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ के इट break down the sucrose into glucose and fructose. माल्टेज जो है वो माल्टोज को तोड़ती है into maltotriose and glucose molecules. and alpha dextrinase जो एंजाइम है, it break downs the alpha 1,6 glycosidic bond in isomaltase, और वो लिमिट भी करते हैं कहीं ना कहीं डेक्स्ट्रिन्स को to be produced by
स्टार्च, एंड दैट्स हाउ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एकदम अपने फाइनल प्रोडक्ट में आ जाते हैं जिसमें उनका डाइजेशन है हो सकता है, जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है उनका एकदम ग्लूकोज के फॉर्म में वो आ जाते हैं। तो ग्लूकोज के फॉर्म में ही फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है, दैट इज द एब्जॉर्बेबल फॉर्म फॉर carbohydrates. Okay, so glucose में finally convert हो जाते हैं. That completes the digestion of carbohydrates in the small intestine. Further, furthermore, proteins का digestion small intestine में कैसे होता है? See, mainly ये duodenum में होता है और jejunum में होता है, small intestine के जो parts होते हैं उसमें। अभी प्रोटीजेस प्रेजेंट होती है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होती है प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक एंजाइम, जैसे कि ट्रिप्सिन हुई, कार्बोक्सी पॉलीपेप्टिडेज हुई, कीमोट्रिप्सिन हुई, और भी एंजाइम होती है। तो व्हाट हैपेंस इज दे क्लीव द प्रोटीन into polypeptides or whatever. So enteropeptidase is an enzyme which is produced by cell of the small intestine. Enteropeptidase भी एक एंजाइम होती है जो कि प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, पेप्टिडेजेस होती है वो भी बेसिकली। सो व्हाट हैपेंस इज एंटेरोपेप्टिडेज स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स ही प्रोड्यूस करते हैं। एंटेरोपेप्टिडेज ट्रिप्सिनोजन को, विच इज अ जाइमोजन, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है ट्रिप्सिनोजन, उसको वो एक्टिव कर देती है, ट्रिप्सिन में ले आती है एंटेरोपेप्टिडेज, जिसके वजह से पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं एंड इट क्लीव्स डाउन दी प्रोटीन्स इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। नाउ जो डाइजेस्टिव स्टेज होती है प्रोटीन्स की इंटेस्टाइनल लिमन में, वो फर्दर फिर ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स के थ्रू जो सिंथेसाइज करता है एंटेरोसाइट्स, उसके थ्रू वो फर्दर एक अच्छे एब्जॉर्बेबल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। उसकी वजह से दो तरीके की पेप्टिडेजेस प्रेजेंट होती है ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, वन इज अमीनो पेप्टिडेजेस एंड सेकेंड इज डाइपेप्टिडेजेस। अमीनो पेप्टिडेजेस अमीनो एसिड को क्लीव करती है एट द अमीनो एंड ऑफ अ पेप्टाइड, और डाइपेप्टिडेजेस डाइपेप्टाइड्स को तोड़ती है इनटू सिंगल अमीनो एसिड्स। तो दैट्स हाउ प्रोटीन डाइजेशन इज डन इन द स्टमक। लिपिड डाइजेशन किस तरीके से होता है? सो व्हाट हैपेंस इन लिपिड डाइजेशन? नाउ लिंगुअल और गैस्ट्रिक लाइपेजेस जो स्टमक में थी उसके थ्रू स्टमक में थोड़ा बहुत हुआ, उसके बाद वही सेम एंजाइम लिंगुअल लाइपेज एंड गैस्ट्रिक लाइपेज स्मॉल इंटेस्टाइन में लिपिड्स को फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ने की कोशिश करती है। ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ा जाता है। एंड उसके बाद द फर्स्ट स्टेप इन फैट डाइजेशन इंक्लूड्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाय बाइल सॉल्ट्स एंड फॉस्फोलिपिड लेसिथिन। तो व्हाट हैपेंस इज फैटी एसिड्स में टूट गए, अब वो फैट ग्लोब्यूल्स बन गए एंड मोनोग्लिसराइड्स में टूट गए। उसके बाद उसका इमल्सिफिकेशन होता है, फैट डाइजेशन होता है। एंड वो जब इमल्सिफिकेशन होता है ना, इमल्सिफिकेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस जहाँ पे वो फैट ग्लोब्यूल को, जो कि एक बड़ा सा ग्लोब्यूल रहता है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। सो उसे इमल्शन ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, विच इज फर्दर डाइजेस्टेड बाय लाइपेजेस। लाइपेजेस जब उसको डाइजेस्ट करते हैं तो वो मोनोग्लिसराइड्स, फैटी एसिड्स, इन सब को बनाते हैं एसोसिएटेड विद बाइल सॉल्ट्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, जिससे फिर एक मिसल फॉर्मेशन जैसा जनरेट होता है। तो इस तरीके से डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में लिपिड्स का। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स is pancreatic lipase, gastric lipase and lingual lipase, ठीक है, but pancreatic lipase is the most important enzyme. This is present in the large quantities in the pancreatic juice, और वहाँ से ये एंजाइम ले सकते, मतलब वहाँ से ये एंजाइम ओरिजिनेट होती है एंड इट ब्रेक डाउन दी C1 एंड C3 एंड ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। तो उस वजह से जो लिपिड पार्टिकल्स जो होते हैं, जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, वो फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो पाता है। प्रोटीन कॉलीपेज, नाउ एक जो कॉलीपेज एंजाइम भी होती है जो कि पैनक्रियाटिक लाइपेज की ऑप्टिमल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कॉलीपेज एंजाइम जो कि पैनक्रियाटिक लाइपेज की ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। पैनक्रियाज इसको सीक्रेट करता है। ये एक्चुअली पहले प्रोकैलिपेज फॉर्म में रहती है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहती है, विच इज एक्टिवेटेड बाय ट्रिप्सिन, एंड फिर ये फर्दर सपोर्ट करती है पैनक्रियाटिक लाइपेज को ताकि इमल्शन ड्रॉपलेट्स बन पाए, वो फैट ग्लोब्यूल छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो पाए, विच इज फर्दर डाइजेस्टेड बाय द लाइपेज मिसल फॉर्मेशन होने के लिए। सो दैट इज हाउ लिपिड्स आर डाइजेस्टेड इन द स्टमक। ओके, नाउ
digestion of cholesterol esters and phospholipids. अब जो cholesterol and phospholipids are in very small quantity in the food particles, but they need to be digested in the absorbable forms, irrespective of the quantity. Cholesterol basically क्या होता है? Free cholesterol and फैटी एसिड का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स बन जाते हैं. नाउ इसका भी डाइजेशन होने का जरूरी है. सो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स क्या होता है? फ्री कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड, वन मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड का कॉम्बिनेशन. सो फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स का भी डाइजेशन होना जरूरी होता है. लाइपेज एंजाइम ही इसका डाइजेशन करती है, विच ब्रेक डाउन दी फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स इनटू द सिंपलर कंपोनेंट्स, सिंपलर पार्टिकल्स. सो उस तरीके से इसका डाइजेशन होता है. न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन कैसे होता है? सो डीएनए के लिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज होती है, आरएनए के लिए राइबोन्यूक्लियेज होती है जो कि डाइजेस्ट करती है न्यूक्लियोटाइड्स को डाइजेस्ट करने के बाद इट फॉर्म्स फर्दर वो डाइजेस्ट होता है ब्रश बॉर्डर एंजाइम से, एंड उसके बाद फिर न्यूक्लियोसाइडेजेस बनते हैं एंड फॉस्फेटेजेस बनते हैं, विच is further bifurcated or divided into pentoses, phosphates and nitrogenous base. अब न्यूक्लियोटाइड्स जो बनते हैं वो फर्दर न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फोरिक एसिड में डिवाइड हो जाते हैं फॉस्फेटेजेस एंजाइम से. उसके बाद न्यूक्लियोसाइड्स जो हैं अब वो भी फर्दर प्यूरिन्स एंड pyrimidines एंड शुगर इन सब में क्लासिफाई. सो एकदम यू हैव टू अंडरस्टैंड टू फॉर द डाइजेशन टू बी डन इन द बॉडी. It is a simple trick that it is going to go into its simplest form available, possible in the body. It is going to go from the complex to the simplest form. That is the whole process of digestion. Okay, because the simplest form is only the absorbable form which can be digested by the body. So this is about digestion in small intestine. Then comes digestion in large intestine. अब large intestine में digestion किस तरीके से होता है? Final stage में जब digestion होता है तो वो large intestine में होता है. वहाँ पर बहुत सारे bacterias और ये सब present होते हैं which digests the food products in the large intestine. Mucus is secreted by the glands of the large intestine. लेकिन डाइजेस्टिव एंजाइम कोई सीक्रेट नहीं करता है लार्ज इंटेस्टाइन. म्यूकस सीक्रेट होता है. सो व्हाट हैपेंस इज बैक्टीरिया जो है वो फॉर्मेंट कर देता है कार्बोहाइड्रेट्स को जो काइम में प्रेजेंट होते हैं, एंड दे रिलीज गैसेस सच एज हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. यही गैसेस जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जाती है तो वो फ्लैटुलेंस कॉज करती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जाती है. This was about digestion and how digestion can be carried out in the body. I hope this video helped you. If you have any doubts, or any particular suggestion you want to give me, please do let me know below in the comment section. Also, if you want any particular topic of your choice to be explained by me, please do let me know below in the comment section. Please do like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want any particular topic of your choice, please definitely do let me know below in the comment section. I'll definitely make a video on that. Okay, so thank you so much for tuning in. Do like, comment, share and subscribe to my channel. Bye bye, take care. Thank you.